Hello and Assalamu alaikum. This is Nida Asif, Nati Urdu trainer at CECA. I hope you guys are all well and enjoying this lockdown again in Australia. All right, guys. Today is 14th of February and it's Nati Urdu class from 11 a.m. to 1 p.m. All right, so I'm taking this class from CECA platform, which is not only providing the free Nati Urdu classes, but there are a lot of other services which are provided by CECA without any cost. So let's discuss what are these services. If your student visa is going to expire, you can extend through CECA free of cost. So free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health covers for overseas students and visitors, free TR 485 visa application, and free PTE and IELTS classes if you are tutor of Nati classes, and free Nati classes in 4 languages, which includes Hindi, Nepali, Punjabi, and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, again, you can come at CECA and you can get assessed your profile free of cost. College admission in Australia or in Canada, PR pathways, you can get free consultation at CECA anytime through email, through calls, and through Facebook page. And you will be responded as soon as possible. All right, guys. So these are the services which are provided at CECA along with the Nati Urdu classes. So let's come back to the Nati test. Hamesha ki tarah, I will explain the structure first for all the students who are listening to me for the first time so that they come to know what kind of test it is and how many segments it has. So this test has 2 dialogues, जो कि around 300 to 350 words पे होते हैं, मतलब कोई बहुत लंबा डायलॉग नहीं होता. एक 5 to 7 मिनट्स की कन्वर्सेशन होती है 2 लोगों के दरमियान, और ये हमेशा 2 लोगों के दरमियान ही होती है, कभी 3 लोगों का कन्वर्सेशन इन डायलॉग नहीं आएगा. ठीक है. So for example, a patient is at clinic and he is talking to doctor and he is explaining any issues, whatever the health issues he has. So these kind of circumstances, I will also let you know about the topics. तो ये बात कंफर्म है कि सिर्फ 2 लोगों के दरमियान ही कन्वर्सेशन एज ए डायलॉग आएगी. ऑलराइट. तो डायलॉग के मार्क्स कितने हैं? ईच डायलॉग हैज 45 मार्क्स and passing marks in each dialogue are 29. 29 out of 45 are the passing marks for each dialogue, but overall passing marks are not 54 58. If we add 29 plus 29, it's 58, but it's if you will get 29 in each, still you are fair because overall passing marks are 63 out of 90. So always keep your target in 32 in each dialogue so that you can easily get overall passing marks. कभी भी 20s में अपने मार्क्स को मत सोचें कि मेरे 20s में आएंगे, हमेशा 30s में इमेजिन करें, क्योंकि जब तक आपका गोल 30s में नहीं होगा, you won't make your preparation according to that. Okay? So आपने माइंड में रखें कि पासिंग मार्क्स इन ईच डायलॉग 32, तो मुझे अचीव यही करने हैं, सो आपके ओवरऑल भी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे. Okay, so I hope marking is clear. 90 टोटल मार्क्स हैं और 45 ईच डायलॉग, जिसमें से हमें 63 ओवरऑल अचीव करने हैं. या अगर आपके एक डायलॉग में 29 है, आई एम सॉरी, एक डायलॉग में आपके 28 हैं और दूसरे में आपके 37 है, स्टिल यू आर फेल. ओके, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरऑल आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो अगर एक नंबर कम हो गया एक डायलॉग में तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. सो यू हैव टू अचीव मिनिमम पासिंग मार्क्स 29 इन ईच डायलॉग. ऑलराइट गाइस, अब इस टेस्ट का मार्किंग क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. मार्किंग क्राइटेरिया is deductive marking system. Deductive marking system is like when they will start hearing your test. जब starting पे you have full 45 marks. As long as जब आपके segments वो सुनते जाएंगे तो आपके mistakes के according आपकी मार्किंग डिडक्ट होती जाएगी. ठीक है.
सो ऑलवेज ट्राई टू बी बेस्ट इन ईच सेगमेंट, क्योंकि हर सेगमेंट के अलग से मार्क्स होंगे, हर सेगमेंट का अलग से आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो बी परफेक्ट इन ईच सेगमेंट। अगर छोटे सेगमेंट आते हैं तो आई ऑलवेज इन्फोर्स यू दैट कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर। सो देर इज नो option to deduct any marks in small segments. Okay, yes, for long and lengthy segments there might be the chances of mistakes. तो कोशिश करें कि जो हम बेस्ट जिसमें कर सकते हैं वो करें, एंड बाकी जितनी हमारी बेस्ट एफर्ट हो सकती है फॉर लॉन्ग सेगमेंट्स, क्योंकि प्रिपरेशन हमारी उसी के लिए ही होती है। स्मॉल सेगमेंट्स तो एनीबॉडी कैन डू इट, तो लॉन्ग सेगमेंट्स की प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही आप बेस्ट हो सकते हैं एंड यू कैन अचीव मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस चाहिए होती है? यू शुड बी गुड इन टेकिंग नोट्स, यू शुड बी फ्लुएंट, कोई पॉजेस नहीं होने चाहिए आपके आंसर में, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से रिकॉर्ड होके जाए, सो दैट द एग्जामिनर कैन हियर इट, ठीक है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी मार्किंग होगी। ओके, so 4 essential key criteria for markings. The first one is accuracy. Obviously, if you are listening something in English and you are going to interpret in other language, it should be accurate. It means like information should be accurate. This is the first criteria. Correct information होगी interpretation में. This is not a translation test. So be विजिलेंट के आप अपना मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। इट डजंट, आपको एक एक मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग सोचने की जरूरत नहीं है। यू शुड जस्ट नीड टू ग्रैब द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि क्या इंफॉर्मेशन है, और उसको आपने अदर लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर देना है। अगर आपका किसी वर्ड का कोई आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा, तो क्लोजेस्ट मीनिंग के अच्छा इसकी जगह अगर मैं क्या वर्ड यूज करके मैं वही मीनिंग कन्वे कर सकता हूँ, ठीक है। So this is, that's why it's interpretation test, it's not translator. All right. So the first criteria is accuracy. ठीक है, the most important thing, information should be correct. अगर आपकी information, अगर आप correct information convey नहीं कर पा रहे, so no one is gonna give you the job of interpreter. ठीक है, आप उस एस्पेक्ट से सोचें कि अगर आपको किसी की जगह इंटरप्रिटेशन करने के लिए रख लिया गया है किसी हॉस्पिटल में या किसी और लीगल फॉर्म में, इमिग्रेशन में, सो अगर हम इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं दे पा रहे जो हम उर्दू लैंग्वेज की उर्दू स्पीकर की सुन रहे हैं, सो व्हाट द मीनिंग ऑफ बीइंग द इंटरप्रेटर, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज accuracy. The second thing is distortion, which is opposite of accuracy. Obviously, if you will mispresent the information, that is distortion. Smallest things are considered under this criteria. For example, if the patient is talking about his right arm, और उर्दू में आप उसको मीन्स कि अगर उर्दू में वो कह रहा है कि मेरे दाएं बाजू में दर्द है और इंग्लिश में आप उसको लेफ्ट बोल देते हैं, सो दैट इज मिसप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आपके लिए एक माइनर वर्ड हो सकता है कि राइट की जगह लेफ्ट बोल दिया, और अप और डाउन इस तरह के कुछ वर्ड्स, लीगल की जगह इलीगल बोल दिया, तो मतलब आपने सुना इलीगल है और आपने अदर लैंग्वेज में उसको उस चीज को लीगल कन्वे कर दिया। सो दिस इज मिसप्रेजेंटेशन, ये कोई छोटी चीज नहीं है, दिस इज डिस्टॉर्शन, आपने इंफॉर्मेशन को मिसप्रेजेंट किया है, और दैट इज ऑल्सो एसेंशियल क्राइटेरिया। अगर इस तरह की मिस्टेक्स होंगी तो है तो एक वर्ड, बट 5 to 6 marks they can deduct for it. Okay. The third essential key criteria is addition. Addition means कि आपने अपनी तरफ से information add कर दी है। आपका unnecessary information add करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। You can add few words कि जिससे आपका meaning अच्छे से convey हो जाए, but you don't need to add any sentence कि okay अगर मैं ये वाला sentence भी add कर दूंगा तो मे बी कि मैं इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से कन्वे कर पा रहा हूँ, या अगर मेरा मकसद इंफॉर्मेशन को अच्छे से कन्वे करना है तो मैं पूरा एक ऐसे ही बोल दूं कि ये चीजें हैं और मैं मीनिंग कन्वे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितने सेंटेंस एक सेगमेंट में जितने आपने सेंटेंसेस सुने हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर उसने 4 सेंटेंसेस में अपनी बात कंप्लीट की है, तो कोशिश करें
कि उन्हीं 4 सेंटेंसेस को आप दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें. यस, यू कैन ऐड वर्ड्स बट यू कांट ऐड सेंटेंसेस. दिस विल कम अंडर एडिशन, एडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन. आई होप दिस इट्स क्लियर गाइस. एंड ये छोटी छोटी चीजें फील होती हैं बट इनके मार्क्स बहुत ज्यादा डिडक्ट होते हैं. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज explain the pattern of the test, structure of the test, ताकि ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे हों, आपकी माइंड की एक एक लेयर में बैठ जाएं कि हम इस तरह की मिस्टेक्स करने के लिए अलाउड नहीं है. ओके, फोर्थ एसेंशियल क्राइटेरिया इज ओमिशन. ओमिशन इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच आर डन बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होती है मिसिंग इंफॉर्मेशन, कि आपने इंफॉर्मेशन जो आप सुन रहे हैं उसमें से जितनी आपके नोट्स ले पाए हैं इट्स ऑल राइट, बाकी आप बस उसको कंसीडर नहीं करते कि ओके जितना मैंने लिख लिया है मैं उसी को ही कन्वे कर देता हूँ. दैट इज मिसिंग इंफॉर्मेशन. अगर आपने 4 सेंटेंसेस सुने हैं तो उसका 2 के आप नोट्स ले पाए हैं और 2 के नहीं ले पाए, तो मीन्स कि दैट इज मिसिंग इंफॉर्मेशन. तो उसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिडक्ट होते हैं. तो कभी भी इसको मतलब लाइट मत लें कि क्या अगर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है लेकिन इसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं. सबसे अच्छा ऑप्शन तो ऑलरेडी गिवन बाय द नाटी सीसीएल कि आपके पास एक ऑप्शन होता है रिपीट लेने का. ठीक है, इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, मैं तो अगर मैं आपकी कोई बात सुन रही हूँ और मैं सॉरी कि मुझे आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो मेरे लिए कितना बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि मैं दोबारा से आपकी बात सुन के मैं उसके नोट्स ले सकती हूँ. ठीक है, सो यस वी हैव द दिस opportunity to take repeat once in each dialogue without any negative marking once. ओके, सो अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, यस यू कैन टेक अ रिपीट, यू कैन आस्क आई वांना लिसन दिस सेगमेंट अगेन, तो वो आपके लिए उसको दोबारा प्ले कर देंगे और आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे. तो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप अपने नोट्स कैसे कंप्लीट करेंगे? एज आई ऑलवेज मेंशन कि हमेशा अपने नोट्स आप बुलेट पॉइंट्स कंसिडर करके लिया करें कि हम बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं. आपने पहला सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस की इंफॉर्मेशन शुड बी इन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन. एंड नाउ फॉर एग्जांपल आपने पहला लाइन का नोट ले लिया, सेकंड की आपको समझ नहीं आई क्या बोला उसने, देन डोंट स्टॉप, कंटिन्यू विद टेकिंग नोट्स. मतलब कभी भी अपने आप को बीच में मत छोड़ें. जितनी इंफॉर्मेशन, जितने वर्ड्स समझ आते हैं जस्ट राइट इट डाउन, और जो नहीं समझ आता उसके लिए जगह छोड़ दें. ठीक है, उसके लिए जगह छोड़ दें, नेक्स्ट राइट करें, उससे नेक्स्ट राइट करें, ताकि जब आप रिपीट लें सो यू हैव योर फोकस ओवर देयर कि जो इंफॉर्मेशन मैंने मिस की है बस मैं वही ध्यान से सुनूं और मुझे बाकी इंफॉर्मेशन अगेन लिखने के लिए कोई बॉदर ना करना पड़े. ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक फॉर नोट्स टेकिंग. नोट्स हमेशा अपने एक फॉर्म, एक सेंटेंस जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे वैसे लें. कभी भी एक ही लाइन में सारे नोट्स घुसाने की कोशिश मत करें. ठीक है, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा. ठीक है, एज आई मेंशन फ्लुएंसी कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें. ठीक है, जब तक आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे यू कांट बी फ्लुएंट. आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक की इंफॉर्मेशन मुझे एक सांस में बोलनी है. ठीक है, बी वेरी नेचुरल. कोई अपना वो पॉजेस लेके, या अगर आप लेते हैं पॉजेस तो ट्राई टू बी देर जहाँ पे नेचुरल हमें लगे कि हाँ हमें यहाँ ये सेंटेंस खत्म हुआ है तो यू कैन टेक अ पॉज एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग अगेन. ओके, लेकिन इस तरह की कोशिश मत करें बोलने की. यू आर नॉट अलाउड कि आप सेंटेंसेस, आप वर्ड्स के मीनिंग उस टाइम पे मत सोचें, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतने आप ज्यादा पॉजेस लेंगे. ठीक है, आई मेंट टू से दैट कि अगर आपका कोई वर्ड आप किसी पे अटक जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का वर्ड कोई आ जाता है कि मैं ये अवेलेबल नहीं है, अब अवेलेबल का आपको उस टाइम पे उर्दू में मतलब नहीं आ रहा तो इट्स ओके, डोंट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. जस्ट वही इंटरप्रिटेशन करते हुए उर्दू में ही जब बोल रहे हो तो आप अवेलेबल बोल दें. ठीक है, पॉजेस मत लें, सोचें मत. ठीक है, तो ये हैं टेक्निक्स. वोकेबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम प्रोवाइड करते हैं
हमारे पास each and every topic की we have the vocabulary separately, but we also have the overall vocabulary for all the dialogues के जो words किसी भी dialogue में use हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप वो prepare कर लेंगे, so means your 60 to 70% vocabulary is ready. लेकिन we also have the vocabulary according to the topics as well. So if you guys come in the class and join me every Sunday from 11 to 1 p.m, I can provide you with that vocabulary as well so that you can make your preparation. All right, okay. So I mentioned fluency is very important, vocabulary is important, but अगर कोई ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पे आपको कोई वर्ड का उसका मीनिंग नहीं आता, just use that word as it is, चाहे वो इंग्लिश का हो या उर्दू का, ठीक है? Because अगर आप सोचेंगे, if you will start thinking about the meaning, तो आप डेफिनेटली पॉजेस लेंगे जिससे आपकी फ्लुएंसी इफेक्ट होगी और फ्लुएंसी के भी मार्क्स काफी हैं. इट इज एज इम्पोर्टेंट इन नाटी टेस्ट एज इन पीटीई, ठीक है? सो हमेशा अपना फोकस रखें कि फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव करना है. फ्लुएंसी को आप सिर्फ तभी इम्प्रूव कर पाएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एज वी आर डूइंग डायलॉग्स फ्रॉम आवर ऐप नाटी CCL की जो ऐप है, हम इसमें से डायलॉग्स कर रहे हैं, हम इसी में से डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, दिस इज द बेस्ट ऐप आपके लिए. ना सिर्फ इसमें डायलॉग्स हैं बल्कि आप अपना इसमें आंसर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? देन यू कैन मैच योर आंसर विद अ सैंपल आंसर, ठीक है? तो जब आप खुद को रिकॉर्ड करके अपना आंसर सुनेंगे, देन यू आर बेटर कि हम कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? हम पॉजेस ले रहे हैं ज़्यादा, हम फ्लुएंट नहीं हैं, या हमारी ये अगर मैं इसकी जगह ये वर्ड यूज़ करता तो दैट वाज़ अ गुड आंसर, ठीक है? जब तक आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, यू आर नॉट एबल टू मेक अ गुड preparation for the test. But still, if you want me to analyze you, to assess you, to mark you, you can come in the class. Yes, I can help you with your preparation. Every Sunday 11 a.m. to 1 p.m. नाटी उर्दू CCL की क्लास होती है, ठीक है? Okay, so this is all about the pattern and structure of the test. Okay, one thing I need to mention कि मैंने अभी आपसे बोला कि आप रिपीट का ऑप्शन ले सकते हैं विच इज फ्री ऑफ नेगेटिव मार्किंग वंस. अगर आप एक दफा ये ऑप्शन लेते हैं तो उसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? लेकिन इफ यू फील दैट कि मुझे नेक्स्ट अगेन किसी सेगमेंट में अगेन मुझे रिपीट लेना है या मेरी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, आई नीड टू टेक द रिपीट, यस यू कैन गो फॉर इट. एंड इसका -1 होगा, ठीक है? जितनी दफा फिर उसके बाद आप लेते जाएंगे रिपीट, -1 होता जाएगा. सो इट्स ऑल राइट, टेकिंग रिपीट इज नॉट अ बिग इशू, बल्कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है. अगर आपका 2 या 3 दफा भी अगर आपको ये लेने की जरूरत पड़ती है, यस यू शुड गो फॉर इट. बजाय इसके कि आपके -4 -5 मार्क्स एकदम से डिडक्ट हो जाएं, तो -1 इज बेटर, ठीक है? और सबसे पहले जैसे डायलॉग का एक टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं जिसमें वो बता देते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड डायलॉग है और किन दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है? किन दो लोगों के दरमियान किस टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो रही है, ये टॉपिक में ही बता देते हैं, जिसकी आपको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यू हैव टू जस्ट लिसन केयरफुली दैट इंफॉर्मेशन. हाँ, अगर टॉपिक की भी अगर आपको समझ नहीं आती, यू कैन टेक रिपीट फॉर दैट एज वेल, ठीक है? नेवर टेक इट एज कि अच्छा अभी तो डायलॉग स्टार्ट हुआ है कि मुझे अभी नेगेटिव नहीं कराना, अपना मुझे अभी रिपीट नहीं लेना. अपना आप अच्छा इंप्रेशन रखें इन द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट. मेक इट श्योर कि आप एक अच्छे से स्टार्ट ले रहे हैं तो ताकि एग्जामिनर भी आपसे थोड़ा सा इंप्रेस हो जाए और वो आपकी बहुत छोटे छोटे उस पे ना करे, ठीक है? यू गाइज ऑल नोज के फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो बी वेरी फ्लुएंट, वेरी क्लियर इन द बिगिनिंग. हाँ, अगर आपको दूसरे तीसरे सेगमेंट में भी अगर जरूरत पड़ती है रिपीट लेने की, यस यू कैन गो फॉर इट. कभी भी अपने मार्क्स के साथ कंप्रोमाइज मत करें. इसमें बहुत छोटे छोटे चीजों पे डिडक्शन होती है मार्क्स की और बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? एक पूरी वो लिस्ट है उनके पास कि अगर आप अपनी बहुत ज्यादा पॉजेस ले रहे हैं या आपने बहुत ज्यादा सेल्फ करेक्शन की है या बहुत ज्यादा हेजिडेंट है, एक्सप्रेसिव नहीं है, लाउड नहीं बोला, तो इस तरह की एक काफी लंबी लिस्ट है जो कि वो आपके रिजल्ट के साथ अगर आप फेल हो जाते हैं वो आपको भेज देंगे कि ये आपने मिस्टेक्स की हैं, ओके? और इनके अकॉर्डिंग मार्क्स कटे हैं.
ऑलराइट, अब सेल्फ करेक्शन की बात आई है तो आई नीड टू एक्सप्लेन दैट एज वेल कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेगमेंट आ जाता है और आप उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गोना से दिस, Good morning, Mr. Aftab. I remember you came to see me last week complaining about paining your right knee. Is your condition getting better? ठीक है, अब मुझे इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो मैं करूंगी ओके। सुबह बखैर मिस्टर आफ्ताब, मुझे याद है आप लास्ट टाइम मुझसे मिलने आए थे, लेकिन आपके घुटने में दर्द था। अब आपकी हालत कैसी है? नाउ आई कम टू नो कि मुझे इसे बेटर करना है, क्योंकि मैंने राइट नहीं बोला, ठीक है, दायां घुटना मुझे बोलना चाहिए था, मैंने सिर्फ घुटना बोल दिया, या मैंने बोल दिया था पॉजेस लिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से सॉरी, आई करेक्ट माई सेल्फ। सुबह बखैर मिस्टर आफ्ताब, मुझे याद है आप पिछले हफ्ते अपने दाएं घुटने में दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे। क्या आपकी हालत अब बेहतर है? ठीक है, सो अगर आपने पहले कोई मिस्टेक कर दी है या कोई पॉजेस बहुत ज्यादा ले लिया या आपको लगता है कि अगर मैं दोबारा इसको बोलूंगा तो मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, यस यू कैन डू सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, एंड वो फिर आप उसको ज्यादा अच्छे से बोलें, इतना अच्छा बोलें कि वो वर्थ हो उसकी सॉरी लेने की, ठीक है, सेल्फ करेक्शन की। यू कैन डू इट वंस और ट्वाइस बट नॉट मोर देन दैट, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता, ठीक है। बहुत ज्यादा सेल्फ करेक्शन करेंगे, सॉरी आई रिपीट माई सेल्फ, ये वाले इस तरह की चीजें करेंगे तो इससे आपका इमेज, आपका इंप्रेशन खराब होगा, ठीक है, और वो उसके मार्क्स इस बेसिस पे जरूर काटेंगे और वो मेंशन करके भेजेंगे एक्सेसिव सेल्फ करेक्शन और एक्सेसिव पॉजेस, इस तरह की वो हर डिटेल मेंशन करके भेजेंगे आपके रिजल्ट के साथ। Alright guys, in the end now you need to tell about the topics जिनसे related dialogues आते हैं, so please make a list ताकि आपको पता हो कि इन टॉपिक से रिलेटेड हमें vocabulary याद करनी है और प्रिपेयर करनी है for your exam. So these topics are business, education, employment, financial, health, housing, immigration, legal, social service, इंश्योरेंस, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स जिन पे डायलॉग्स आते हैं जिनसे रिलेटेड। सो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमें किस चीज किस टॉपिक से रिलेटेड हमें वोकैबुलरी लर्न करनी है। So I hope guys I have mentioned all details about the structure, pattern and strategies which we need to take regarding taking the notes, और कोशिश करें कि अपने notes के लिए minimum 3 words from each sentence जरूर write किया करें ताकि आपके पास अच्छा मटेरियल हो बोलने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हम कुछ हमारे स्टूडेंट्स को उर्दू नहीं भी लिखनी आती जो फ्रॉम इंडिया है, और कुछ स्टूडेंट्स अब इतना अरसा हो गया है उर्दू लिखे हुए, दे आर नॉट एज फास्ट इन राइटिंग उर्दू, दे आर नॉट गुड इन टेकिंग नोट्स इन उर्दू। सो क्या इसके लिए हम कर सकते हैं? यस यू कैन टेक नोट्स इन इंग्लिश, जैसे हम टेक्सिंग करते हैं हम उर्दू को भी इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, आप अपने नोट्स वैसे ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि अब हमने उर्दू में इसको इंटरप्रेट करना है या इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि आप सारा कुछ ही इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो ये मिस्टेक होती है। अब डोंट थिंक कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसने इंग्लिश में बोला है तो आपको उर्दू में ही बोलना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इट हैपन्स, ये सबके साथ हो जाता है और ये हुआ है। इवन के मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ प्रिपरेशन करते हैं वो ऐसा कर देते हैं। मैं उनकी तरफ कुछ वियर्ड नजरों से देखूंगी कि इसने ये मिस्टेक करा है, सो दे रियलाइज ओके कि मैं ये मिस्टेक अपनी करेक्ट करूं, बट इन द एग्जाम नोबडी विल गिव यू एनी लुक कि भाई तुम गलत लैंग्वेज में बोल रहे हो, ठीक है, तो आपका वही आंसर आपका रॉन्ग रिकॉर्ड होगा जिसका एंड अब यू कैन इमेजिन कि अगर आपका एक सेगमेंट भी पूरा रॉन्ग हो जाता है तो देर आर वेरी वेरी माइनर चांसेस टू पास द टेस्ट, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द स्ट्रैटेजीज आर कि या तो आपको पता है कि अब मैंने उर्दू बोलनी है तो क्विकली राइट यू एंड ई, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश बोलनी है क्विकली राइट ई, सो आप बिफोर स्टार्टिंग द सेगमेंट, ओके, ताकि आपको पता हो कि मैं नोट्स लेने के बाद मुझे इंग्लिश ही बोलनी है। अगर आपने यू लिखा है तो आपको पता हो कि मैंने उर्दू ही बोलनी है, ठीक है।
डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा होता है, ठीक है। और ये कोई कॉमन सेंस की बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम का प्रेशर होता है कि आपको नहीं पता चलता कि आप क्या बोल रहे हैं। इवन कि अगर हमारा इस तरह का कुछ स्पीकिंग टेस्ट होता है, जब हम एग्जाम से बाहर आते हैं तो हमें कुछ चीजें तब रियलाइज होती हैं, अच्छा हमने ये बोल दिया था, हमने ये कर दिया था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम यू आर अंडर प्रेशर, यू डोंट नो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब लेकिन यू नीड टू बी वेरी रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट एंड अपने आप पे भरोसा रखें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इफ यू आर गुड, इफ यू हैव मेड गुड प्रिपरेशन। ओके, द अदर थिंग, और आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक पार्टीशन ऑफ द पेज। उर्दू वाले सेगमेंट्स एक साइड पे लिखते जाएं ताकि पता हो कि उर्दू इसको अब हमने इंग्लिश में करना है, इंग्लिश वाले दूसरी साइड पे लिखते जाएं कि आपको पता हो कि इसको हमने उर्दू में इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये एग्जाम का स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है। अगर इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन हो या कुछ और आप मुझसे पूछना चाहें, यस यू कैन कम इन द क्लास every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. You guys can come and join me. I can help you with your preparation, with everything. All right, guys. So I'm taking this class from CECA platform, which is not only giving you the opportunity to get these lectures free of cost, but there are many other services which are provided by CECA free of cost, which includes free student visa extension, cheapest professional year options, cheapest health cover for overseas students and as well as visitors, free TR 485 visa application, free PT and IELTS if you are tutor of NATI classes, and free NATI classes in 4 languages, Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu, and free assessment for the Canadian migration. If you want to choose any college and you are confused about the education or course, yes, you can again come at CECA for the free consultation. और इसके अलावा भी वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, yes, you can come at CECA. You can contact us through phone, through email and through Facebook page. You will be responded as soon as possible. All right, guys. So आज हम अगेन एक डायलॉग करेंगे एंड इसके साथ हम कुछ वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर डायलॉग। All right, guys. So let's start the dialogue, and it's related to a hotel booking. मतलब इसमें फोन, इट्स ऑन फोन कन्वर्सेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कि ये रियल दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन है या फोन पे भी हो सकती है। और वन मोर थिंग आई नीड टू मेंशन कि अगर आपका डिपार्टमेंट्स के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, आपको उनका बिल्कुल भी उर्दू में वो करने की जरूरत नहीं है। वीजास के नाम वो आप इंग्लिश में एज इट इज ले सकते हैं। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं उर्दू में, अगर आपको आता है, मतलब जैसे स्टूडेंट वीजा इज तालिब इल्म वीजा, अगर आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं फ्लुएंसी से, yes you can do it, but अगर आपको नहीं, अगर आपको you find it difficult और आपको लगता है कि इससे आप का पॉजेस लेने या ये आपकी फ्लुएंसी पे इफेक्ट करेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये आप इसी तरह इनके नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वोकैबुलरी के अंडर नहीं आएगा। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, डिपार्टमेंट्स के नाम, वीजाज, इमिग्रेशन, ये सब इस तरह की चीजें जैसे आए तो आपको वैसे ही लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम होटल का कोई नाम आ जाता है तो हम होटल का नाम वैसे ही लेंगे, हम उसका उर्दू में तो तर्जुमा नहीं करने बैठ जाएंगे कि ये हॉलिडे इन होटल है तो ये छुट्टी का दाखिला का होटल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो होटल्स के नाम है वो आपने एज इट इज ऐसे ही लेने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डायलॉग। फिर क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी है वाइल इंटरप्रिटेशन में साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। यस, कीप फोकस एंड लेट्स लिसन द फर्स्ट सेगमेंट। Good morning, Mr. Samad. I'm James Simpson. I'm a counsellor here. Nice to meet you. Sorry, actually, I have selected the wrong. All right, so let's listen the first segment. Good morning. Thank you for calling Hilton Hotel. This is Jenny Simpson speaking. How can I help you today? ठीक है, so जैसे आपने Good सुना morning. Thank you for calling Hilton. होटल का नेम और उसने अपना नाम बताया, ठीक है।
तो आपने अगर आपको समझ आ गई है, उसने हिल्टन होटल और अपना नाम क्या बताया है, जेनी सिम्पसन, ठीक है। इफ यू आर फाइन विद लिसनिंग, अगर आपने ये नाम सही से करेक्ट सुन लिए हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर आपको किसी नाम की सही से समझ नहीं आई तो ट्राई टू बी वेरी क्लोज टू इट, कि जो भी आपको क्लोजेस्ट समझ आया है वो आप बोल दें। अगर आप रिपीट नहीं लेना चाहते, अगर आप लेना चाहते हैं रिपीट कि मुझे नाम सही से समझ आ जाए, तो यू कैन टेक रिपीट, बट आई विल प्रिफर कि अगर आपको सिर्फ एक नाम माइनर, उसके लिए ना करें, ठीक है, उसके लिए रिपीट के लिए ना जाएं। आप कोशिश करें कि अगर आपको समझ जो क्लोजेस्ट समझ आई है वो आप बोल दें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने हिल्टन होटल बोला है, that was easy to understand, so let's listen it again. Hotel, this is Jenny Simpson speaking. How can I help you today? So it was easily understood, she said Jenny Simpson. कोई इसमें वो नहीं है, sometimes होता है कि नाम सही से समझ नहीं आते हैं, I agreed, but अगर आपको जो भी closest समझ आया है वो आप बोल दें, but it was very clear in this segment, it was Jenny Simpson और Hilton Hotel है। तो how can I help you, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक है। So हर सेगमेंट के बाद एक 3 to 4 सेकेंड्स लॉन्ग बीप होती है, जिसमें आपके पास टाइम होता है आप अपने नोट्स कंप्लीट करके, और उसके बाद जरूरी नहीं है जैसे बीप खत्म हुई है यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप उसके बाद भी 3-4 सेकंड लेके आराम से यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। लेकिन जब भी आप बोले अपना आंसर, मेक श्योर इट इज लाउड एंड क्लियर और आपको फ्लुएंट होना हो, ठीक है। सो मैं अब इसका करती हूँ आपके लिए। सुबह बखैर, हिल्टन होटल में कॉल करने के लिए शुक्रिया। मैं जेनी सिम्पसन बात कर रही हूँ और मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और यू कैन से सुबह बखैर, हिल्टन होटल में कॉल करने का शुक्रिया। मैं जेनी सिम्पसन बात कर रही हूँ, आपकी कैसे मदद की जा सकती है। ओके, सो व्हाटएवर मेक इट इजी फॉर यू, मतलब बस मीनिंग कन्वे होना चाहिए, ठीक है। Okay, so I don't think any question in it. So let's move to the next segment. सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं गुलकार आतिफ असलम की जाती सेक्रेटरी हूँ। मैं आपके होटल में उनकी मेलबर्न के अगले दौरे के लिए कमरे बुक करना चाहती हूँ, 3 रातों के लिए। अगले दौरे के लिए कमरे बुक करना 3 रातों के लिए, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने लिए हैं, सलाम, सारा, गुलकार आतिफ असलम, जस्ट आतिफ लिख लिया, जाती सेक्रेटरी का भी बस स्मॉलेस्ट जो मैं लिख सकती थी। एज आई एम गुड इन राइटिंग उर्दू, मैं जल्दी क्विकली लिख लेती हूँ, सो मैं उर्दू में ही नोट्स ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाफ ऑफ वर्ड्स लिख रही हूँ, उर्दू के भी पूरे वर्ड्स नहीं लिख रही है, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग नोट्स इन इंग्लिश तो आपको सेक्रेटरी का आप SEC बस खाली लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बस ये सेक्रेटरी है, ठीक है। कभी भी पूरे नोट्स टेकिंग में कभी भी आपने पूरे पूरे वर्ड्स लिखने नहीं है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है जैसे हम टैक्सिंग में लिखते हैं। ओके, जाती सेक्रेटरी, होटल में अगले दौरे के लिए कमरे बुक करना 3 रातों के लिए। सो ये नोट्स लिए हैं मैंने 4 लाइंस में, ठीक है। कोई मुझे वो नहीं है, मुझे पता है कि ये बात उसने पहले की है तो उसी को ही मैं पहले इंटरप्रेट करूंगी एंड दैट्स इट। मुझे कोई एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जितना आप कम सोचेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। ऑलराइट, सो व्हाट्स द आंसर इज, Hi, my name is Sarah and I am personal secretary of singer Atif Aslam. I want to book rooms for 3 nights in your hotel for his next visit in Melbourne. ठीक है, so ये इसका आंसर है। और सलाम को आप सलाम भी बोल सकते हैं, और you can say hi. Hi, my name is Sarah. I am a personal secretary of singer Atif Aslam. I want to book 3 rooms for his next visit in Melbourne in your hotel. That's it. Okay, now let's move to the next segment. Certainly, I can help you with that. Can you please tell me the dates he is planning to visit? Also, how many... Sorry,
It has to be again. Certainly, I can help you with that. Can you please tell me the dates he is planning to visit? Also, how many other guests will accompany him? How many other guests accompany him? I told you ना 3 to 4 seconds लॉन्ग पीप होगी जिसमें ये अपने नोट्स आप लास्ट लाइन तो जरूर ही अपनी कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन यू कैन टेक योर 3-4 seconds मोर एंड देन स्टार्ट योर आंसर. ओके, विजिट होता है दौरा. मैं आपको साथ साथ वोकैबुलरी भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी. सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन या जी बिल्कुल. ठीक है. प्लानिंग मंसूबाबंदी या मंसूबा बना रहे हैं, मंसूबाबंदी. गेस्ट होता है मेहमान, कंपनी जो के साथ होंगे. ठीक है. सो द आंसर इज यकीनन. मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ. क्या आप मुझे तारीखें बता सकती हैं जब वो दौरा करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और उनके साथ कितने और मेहमान होंगे. ठीक है. उनके साथ और कितने मेहमान होंगे, कंपनी है उनके मतलब उनके साथ और कितने लोग आ रहे हैं. विजिट होता है दौरा. आई होप यू गॉट इट. जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. क्या आप मुझे तारीखें बता सकती हैं जब वो दौरा करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और उनके साथ कितने दीगर मेहमान होंगे. ठीक है. आपका आंसर इसी तरह ही फ्लुएंट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए. ये एक नेचुरल बात है. ठीक है. इसी तरह की ही कन्वर्सेशन होती है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. या अगर मैं कॉल करूंगी किसी भी होटल में बुकिंग के लिए तो इसी तरह की ही कन्वर्सेशन होगी. ठीक है. इसी तरह की बात होगी तो मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है. जो यही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और यही इसी तरह आंसर होते हैं. ठीक है. सो ट्राई टू बी वेरी नेचुरल, वेरी फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट. और मतलब आपका आंसर में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को कोई भी पॉइंट मिले कि आपका यहाँ से नेगेटिव मार्किंग कर सके. ठीक है. एक एक सेगमेंट डायलॉग का इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट या सेकंड सेगमेंट अच्छा नहीं गया, डोंट नीड टू बी पैनिक. आप अपने बाकी जितना जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें. ठीक है. हर सेगमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है. आप हर पिछले का फीडबैक सोच के नेक्स्ट वाले पे उसका इफेक्ट मत होने दें. ठीक है. हर सेगमेंट ट्राई टू बी वेरी वेरी परफेक्ट इन ईच सेगमेंट. ठीक है. ऑलराइट, सो मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. वो मेलबर्न तकरीबन 1:30 बजे पहुंचेंगे और उसी वक्त चेक इन करना चाहेंगे. उनके साथ 6 अमले के अरकान होंगे, लिहाजा हमें कुल 4 कमरों की जरूरत है. क्या ये मुमकिन होगा? 4 कमरों की जरूरत मुमकिन होगा. ठीक है. नोट्स के लिए मेलबर्न 1:30 बजे, इसी वक्त चेक इन, 6 अमले के अरकान, लिहाजा 4 कमरों की जरूरत एंड क्या ये मुमकिन होगा. ये नोट्स लिए हैं मैंने 5 लाइन्स में. ठीक है. सो तकरीबन इतनी ही उसने बातें की हैं और सबका ही मैंने कोई ना कोई पॉइंट लिखा है. 3 वर्ड्स मिनिमम लिखे हुए हैं. सो आई डोंट नीड टू बॉदर, डोंट नीड टू थिंक अबाउट मच, जस्ट इसी को ही मैंने इंटरप्रेट कर देना है. He will reach Melbourne around 1:30 and will do the check-in at the same time. He will be accompanied by 6 members, so we need 4 rooms. Is that possible or will it be possible? That's it. Or what could be the other way? He will arrive in Melbourne around 1:30 and would like to check in on the same time. He will be accompanied by 6 staff members, so we need 4 rooms in total. Will it be possible? अमले के अरकान, स्टाफ मेंबर्स. अरकान होते हैं मेंबर्स. रुकन सिंगुलर होता है, मेंबर है तो रुकन, मेंबर्स हैं तो अरकान. ठीक है. रुकन अरकान, ये है सिंगुलर एंड प्लूरल. रुकन सिंगल है, अरकान प्लूरल है. सो 6 अमले के अरकान होंगे, लिहाजा हमें 4 कमरों की जरूरत है. सो वी नीड 4 बेडरूम्स, 4 रूम्स. विल दैट पॉसिबल? ठीक है. इसमें कोई भी वोकैबुलरी वर्ड नहीं है. आई थिंक कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है कि जिसका हो कि क्या मीनिंग हो सकता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट.
Yes, it is definitely possible. I can make a booking for you in advance. Can you also tell me what kind of rooms you are looking for? We have single and double rooms and deluxe suites. Single and double rooms and deluxe suites. ठीक है, तो क्या नोट्स मैंने लिए हैं? यस, पॉसिबल, बुकिंग इन एडवांस, काइंड ऑफ रूम्स लुकिंग, सिंगल एंड डबल रूम्स एंड डिलक्स स्वीट्स। ये मैंने सारे नोट्स ले लिए हैं इन 5 लाइन्स। ओके, सो जी, ये यकीनी तौर पर मुमकिन है। मैं आपके लिए बुकिंग कर सकती हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि आप किस तरह के कमरे की तलाश में हैं? क्या आप हमारे पास सिंगल, डबल और डिलक्स स्वीट्स हैं, ठीक है। अब ये सिंगल, डबल ये सारे एज इट इज ही होंगे, इनकी कोई उर्दू में वो मीनिंग नहीं है, ठीक है। एक कमरा, डबल कमरा इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिंगल, डबल और डिलक्स स्वीट्स हैं, ठीक है। इन एडवांस, एडवांस होता है पेशगी या पहले ही या आगे के लिए मैं बुकिंग कर देती हूँ। मैं आपके लिए आगे के लिए, मैं आपकी आगे के लिए बुकिंग कर सकती हूँ। क्या मुझे बता सकती हैं आपको किस तरह का कमरा चाहिए? सिंगल, डबल या डिलक्स रूम, डिलक्स स्वीट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। सिंगल रूम, डबल रूम आप एक वैसा ही बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, so I hope guys that's clear. Move to the next segment. हमें आतिफ जी के लिए एक डिलक्स कमरा और 3 डबल कमरों की जरूरत है। क्या आप इस बात का यकीन कर सकती हैं कि उनको समंदर का सामना करने वाला कमरा मिले जहां मेहमान ना हो, क्योंकि वो राजदारी चाहते हैं? समंदर का सामना करने वाला कमरा हो जहां मेहमान ना हो क्योंकि वो राजदारी चाहते हैं, ठीक है। सो आई हैव जस्ट रिटन आतिफ डिलक्स और 3 कमरे, समंदर का सामना करने वाला कमरा जहां मेहमान ना हो क्योंकि वो राजदारी चाहते हैं। ऑलराइट, इसमें आई डोंट थिंक कोई भी वोकैबुलरी वर्ड नहीं है। Okay, we need 1 deluxe room for Atif Aslam and 3 double rooms. Can you make sure that he gets the sea-facing room with no guests as he wants privacy? Can you make it sure that he needs a room facing the sea with no guest as he wants privacy? ठीक है, तो जैसे आपको easy लगे, जो आपका mind में जो आपका एक इमेज बन जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सी फेसिंग होता है समुद्र का सामना करने वाला कमरा, राजदारी, प्राइवेसी, ठीक है। ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। प्राइवेसी मतलब राजदारी। आई होप इट्स क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। Certainly, that will be taken care of. We have spacious deluxe rooms with full privacy. We will allocate the best room to him and you won't have any problems with his privacy here. Allocate the best room and no problem with his privacy here, ठीक है। ओके, सो क्या नोट्स लिए हैं? सर्टेनली, टेकिंग केयर, टेक केयर आई हैव जस्ट रिटन कि हम इस चीज का ख्याल रखेंगे जो मुझे अंडरस्टूड हुआ है। स्पेशियस डिलक्स रूम, डिलक्स रूम को जस्ट आप DR लिख दें, सिंगल को S लिखें, डबल को D लिखें, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो फॉर द फुल वर्ड्स। स्पेशियस डिलक्स रूम, फुल प्राइवेसी, allocate the best room and no problem with privacy here. That's what I have written. और जो मुझे मतलब समझ आया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इंटरप्रिटेशन कर दूंगी, मुझे ये वर्ड टू वर्ड जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यकीनन हम इस चीज का ख्याल रखेंगे। हमारे पास एक वसी डिलक्स रूम है जहां मुकम्मल राजदारी है और हम इन्हें इसके लिए मुकर्रर कर देंगे और उन्हें अपनी प्राइवेसी के साथ कोई मसला नहीं होगा। सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ,
यहाँ पे मैं अपनी सेल्फ करेक्शन करूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं दोबारा बोलूंगी तो मैं इससे ज्यादा अच्छा बोल सकती हूँ, ठीक है। एलोकेट द बेस्ट रूम मतलब एलोकेट करना होता है किसी को देना, तो हम उनको अपना बेहतरीन कमरा मुकर्रर करेंगे या देंगे, ठीक है। सो आई एम गोना से इट अगेन, आई करेक्ट माई सेल्फ। अगर इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाए जहाँ पे आपको लगे कि मैं दोबारा बोलूंगा या गी, तो मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर इंप्रूव करके बोल सकती हूँ। यस यू कैन से वंस और ट्वाइस, आई मेंशन अर्लियर। तो अब मैं अपना सेल्फ करेक्शन करती हूँ। आई विल से सॉरी, आई रिपीट माई सेल्फ। तो वो मेरा सॉरी से पहले वाला बोला हुआ बिल्कुल ही इग्नोर करके मेरा सॉरी के बाद वाला आंसर कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे, ठीक है। यकीनन इस बात का ख्याल रखा जाएगा, हमारे पास वसी डिलक्स कमरे हैं जहां पर मुकम्मल राजदारी है और हम इन्हें सबसे अच्छा कमरा मुकर्रर करेंगे और आपको इनकी राजदारी के लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। So this is the answer for this. Privacy, राजदारी, एलोकेट करना, मुकर्रर करना, दिस इज द वोकेबलरी वर्ड, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सो दैट जब आप इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो ज्यादा आपको पॉजेस लेने की जरूरत ना पड़े। आई होप गाइस एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so let's move to the next segment. All right, so let's move to the next segment. होटल में कमरा बुक करने के लिए अगला अमल क्या है? हम नहीं चाहते कि वहां पहुंचकर आखिरी वक्त में कोई मुसीबत आए। हम नहीं चाहते कि वहां पहुंचकर आखिरी वक्त में कोई मुसीबत आए, ठीक है। होटल में कमरा बुक करने अगला अमल, ठीक है। तो ये नोट्स हैं जो मैंने लिए हैं, ठीक है। आई रिपीट, ठीक है, सो मेनी टाइम्स। ओके, सो what is the next process for booking the hotel room? We don't want any last minute trouble when we arrive there. Small segments को हमेशा बहुत फ्लुएंट और परफेक्ट रखें, ठीक है। स्मॉल सेगमेंट्स में कोई मिस्टेक ना करें आप, यू कैन गेन फुल मार्क्स फॉर दैट सेगमेंट, ठीक है। सो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप और व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर बुकिंग द होटल रूम? वी डोंट वांट एनी लास्ट मिनट ट्रबल व्हेन वी अराइव देयर। ऑलराइट, आई होप गाइस दिस इज क्लियर। Let's move to the next segment. To make a confirmation, we need some personal details and an advance payment of $500, which is non-refundable on cancellation. After the payment, you will get an email from us regarding your confirmation. So I am not able to take the information, मुझसे कुछ missing है, so I wanna take repeat here. So अगर मैं ये first time ले रही हूँ, so it is free of any negative marking. But अगर होता कि मैंने already लिया होता तो मैं दोबारा यहाँ पे ले लेती repeat, क्योंकि मेरी काफी information miss हो गई है. So let's listen this segment again. To make a confirmation, we need some personal details and an advance payment of $500, which is non-refundable on cancellation. After the payment, you will get an email from us regarding your confirmation. Get an email from us for confirmation. ठीक है, तो सेम बात है कि अगर हमें कहीं भी बुकिंग करानी है तो ऑब्वियसली हमें यही चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। कंफर्मेशन होता है तस्दीक करने के लिए, पर्सनल डिटेल्स ज़ाती तफसीलात, पर्सनल ज़ाती डिटेल्स तफसीलात, एडवांस पेमेंट होता है पेश की अदायगी, ठीक है। पहले अदा करने को बोलते हैं पेश की अदायगी। $500 की पेश की अदायगी है। नॉन रिफंडेबल जो कि मनसूख करने पर गैर वापसी होगी, नॉन रिफंडेबल जिसकी वापसी नहीं होगी। कैंसिलेशन होता है मनसूख करना। ईमेल ही होता है, आपको एक ईमेल मिलेगी रिगार्डिंग कंफर्मेशन, तस्दीक के तौर पे, ठीक है। तो नाउ आई एम गोना से इट्स आंसर।
तस्दीक के लिए हमें ज़ाती तफसीलात की ज़रूरत है। इसके अलावा $500 की पेशगी अदायगी करना होगी जो मनसूख करने पर गैर वापसी है। अदायगी के बाद आपको एक ईमेल मिलेगी जो कि तस्दीक के मुताबिक होगी, या तस्दीक के तौर पर आपको एक ईमेल मिल जाएगी। ठीक है। तस्दीक करने के लिए हमें ज़ाती तफसीलात की ज़रूरत है और हमें $500 की पेशगी अदायगी करना होगी जो मनसूख करने पर गैर वापसी है। अदायगी के बाद आपको तस्दीक के तौर पर एक ईमेल मिल जाएगी। सो दैट्स इट, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, so let's move to the next segment. जबरदस्त, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकती हैं? मैं वहां अपनी सारी जाती तफसीलात ईमेल कर दूंगी। इसके अलावा आप अदायगी के लिए मेरे कार्ड की तफसीलात लिख सकती हैं। इसके अलावा आप अदायगी के लिए कार्ड की तफसीलात लिख सकती हैं। ठीक है। सो जबरदस्त, आपकी मदद का शुक्रिया। आप ईमेल what I have written just email ज़ाती तफसीलात के वो अपनी ज़ाती तफसीलात थ्रू ईमेल भेज देगी। इसके अलावा अदायगी के लिए कार्ड की तफसीलात लिख सकती हैं। So these are the points which I've written. Khadija is here. Hello, अस्सलाम वालेकुम। Hello. She is not here again. Okay, it's all right. So we will continue with our dialogue. ये हमारा last segment है जिसके मैंने notes लिए हैं। जबरदस्त, आपकी मदद का शुक्रिया। ईमेल, ज़ाती तफसीलात, इसके अलावा अदायगी के लिए कार्ड की तफसीलात। ठीक है। So what I will say as an answer. Great, thanks for your help. Can you please give me your official email ID so that I will forward my personal details. Also, you can write down my card details for the payment. Pauses लिया है मैंने, एक pause लिया है which is not good. Okay, but that's all right. इतने से pause के लिए आपको self correction नहीं करनी, ठीक है? जो कह दिया वो ठीक है। जहां बहुत ज्यादा पॉजेस लिए हैं वहां पे सेल्फ करेक्शन करें, क्योंकि सेल्फ करेक्शन आई टोल्ड यू इज नॉट गुड, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। ठीक है। सो थोड़ा सा कहीं पॉज ले लिया, दैट्स इनफ, नेचुरल हो जाता है समटाइम्स, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को जितना फ्लुएंट कर सकते हैं कर लें। ठीक है। सो ग्रेट, थैंक्स फॉर योर हेल्प। कैन यू प्लीज गिव मी योर ऑफिशियल email ID? I will forward you all my personal details there. Also, you can note down my card details for the payment, or also you can take my card details for payment. All right. All right guys, so ये था आज का dialogue which was related to the hotel booking. हमारे सिंगर आतिफ असलम जो कि यहाँ मेलबर्न तशरीफ लाना चाह रहे थे, उनके अगले दौरे के लिए पेश की बुकिंग थी होटल के रूम में। तो कोई बहुत ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं थे। ठीक है। तो प्लीज गाइस इसी तरह की ही नेचुरल कन्वर्सेशन होगी। ठीक है। लेकिन कुछ डायलॉग्स जैसे कि ये, इसको मैं एक एवरेज डायलॉग कंसिडर करूंगी। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वोकैबुलरी की जरूरत होती है। तो डोंट गेट रिलैक्स्ड, ये एक एवरेज टेस्ट, एवरेज डायलॉग था। ठीक है। एक इस तरह का डायलॉग हो सकता है। ठीक है। समटाइम्स होता है कि दोनों ही एवरेज डायलॉग्स आ जाते हैं। समटाइम्स होता है एक बहुत ईजी होता है, दूसरा बहुत डिफिकल्ट होता है, और समटाइम्स होता है कि दोनों इजी हो। इट्स लक कि आपके साथ क्या होता है। ठीक है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ भी सर्कमस्टांसेस अप एंड डाउन हो सकते हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट और अपने आप को सपोर्टिव रखने के लिए जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। सो अगेन, CECA is here to help you all guys, providing these all lectures free of cost.
ठीक है, ना सिर्फ ये सर्विसेज बल्कि देर आर सो मेनी अदर सर्विसेज आल्सो प्रोवाइडिंग बाय CECA, which includes free student visa extension, professional year programs, free PTE and IELTS if you are tutor of Nati classes, and free Nati classes in 4 languages: Hindi, Nepali, Punjabi and Urdu. And if you want to assess your profile for Canadian immigration, yes, we have the consultants, we have the professionals for those as for that category as well. कॉलेज एडमिशन, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोर्स चेंज करें विच लीड्स टूवर्ड्स द PR pathway, तो yes, you can come at CECA for every kind of inquiry, every query. You can contact us through email, through call and through Facebook page. You will be responded as soon as possible. All right guys, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपके टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक. Go with the confidence. Still, if you need any kind of help from my side, yes, you can come in the class from every Sunday. में क्लास मेरी होती है 11 से 1 बजे. ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, if you have done your preparation और आप चाहते हैं कि कोई टेस्ट से पहले आपको एनालाइज करे, आपकी असेसमेंट कर दे, yes, you can join me. मैं आपको बता सकती हूँ कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ आप बेस्ट हैं, so that you can have that confidence that you will achieve and you will pass this test. Okay, so अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू. सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें. यही हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज अ मल्टीकल्चरल हमारा एम है कि हम हर एक के साथ और हर एक को एक ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट करें. ठीक है, सो enjoy your weekend in lockdown and best of luck. Hopefully we'll see you I will see you next Sunday. All the best and Allah Hafiz.